Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो यहाँ पे घुसा नहीं जाता, उल्टी आती है तो वो बाहर ही जाता। बाहर कहाँ? बाहर इधर जाता। यहाँ पीछे? हाँ। और कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, और पीछे भी देखो कितना गंदा हो रहा है। This is Roopmani Singh. He is a tuberculosis patient admitted at SN Medical College in Firozabad. He is so sick that he can barely stand. You can see him outside his ward because the toilets in the hospital are so filthy that he has to defecate out in the open. Singh is not the only patient choosing grounds inhabited by a swine family to relieve himself. So unsanitary are the toilets at Firozabad's district hospital that dengue and tuberculosis patients, as well as their attendants, are defecating and urinating out in the open. Firozabad is currently reeling under an outbreak of 5 diseases at once, which, according to official figures, has claimed 62 lives so far. 80% of them are kids. The 5 diseases have been identified as dengue, scrub typhus, malaria, leptospirosis, and viral fever. SN Medical College at Firozabad is at the epicenter of fighting the disease outbreak that has gripped the district. However, the hygiene conditions at this hospital are not up to the mark. Pigs, dogs are loitering around. There are certain water bodies within the compound of this hospital which are quite dirty. There is also, if you can see behind me, there's also a lot of accumulation of garbage here and there. The toilets are also unusable for patients as well as their attendants who are resorting to defecating in the open inside hospital grounds just outside this TB ward where patients of tuberculosis and dengue are admitted. At the trauma center, the toilets are absolutely disgusting. The sinks, covered in tobacco stains, have basically turned orange-brown, and the smell from the toilet is so strong that it impregnates the entire center. Patients awaiting admission to the hospital lie on stretchers right outside the door of the toilet. In the meantime, the tuberculosis ward of the hospital, which has 2 floors, has been doubling down as an emergency ward. At the peak of the COVID wave, the second floor of this dilapidated building was made into an emergency ward where 40 dengue patients are currently receiving treatment. The bathrooms here are the stuff of nightmares. One entry into the washroom can make anyone nauseated and dizzy. Men and women use the same toilet and the pots are covered with feces which look like it's been stuck on the seat for decades. In urinals, wet clothes which could have been used by women during their periods lie untended. If pigs having free rein in the backyard of a hospital wasn't offensive enough, now patients and their attendants are also forced to share ground with them while urinating and defecating. बाथरूम में ऐसा है, कभी बार पानी आता है, जब उनसे बोल दो तभी वो पानी चालू करते हैं ना, वैसे पानी आता नहीं है और आज उसी में लेटिंग करके चले जाते हैं सब। इसीलिए बाथरूम गंदा हो जाता है, इसलिए हम बाहर जाना पड़ता है। तो खुले में शौच करनी पड़ रही है आपको? हाँ। सुअरों के बीच में? और क्या। तो कैसा, आप इस बारे में कैसा लगता है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि बाथरूम वगैरह यहाँ पर स्वीपर वगैरह को बुलाइए और इसे ठीक करवाइए बस। मैम, इमरजेंसी में एक ये दिक्कत मुझे दिखी कि वहाँ का बाथरूम इतना ख़राब है कि कुछ पेशेंट्स डेंगू के भी और टीबी के भी ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं। मैं उसको देख लूँगी, बट एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट्स के साथ रिलेटिव्स बहुत रहते हैं जी। तो वी हैव केप्ट लॉट ऑफ सफाई कर्मचारी, बट पेशेंट्स के साथ रिलेटिव्स बहुत रहते हैं। वी ट्राई टू उनको रोकने का कोशिश करते हैं, बट टुगेदर दैट इज द कल्चर हियर, सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। The print couldn't see the state of toilets at the 100-bedded mother and child care facility, which is the primary center where children are being treated for dengue, or the pediatric ward that has been opened at the hospital because journalists aren't currently being given access inside. It's been more than a month after the outbreak of dengue and other diseases at Firozabad, but the district hospital is still chaotic. Patients are still spending days at the emergency ward before getting admission inside the hospital, and 2 people are being treated on 1 bed. This even as, according to Dr. Ahuja, half of the beds of the hospital are empty and the graph of the outbreak seems to be bending.
Yeah, we are having 256 patient on bed at this time. Sufficient amount में patient decrease हो गए हैं. Our admission rate is जैसे morning से 92 patients have been admitted and 96 discharged. काफ़ी अच्छा मतलब सुधार आया है पेशेंट्स में. और अभी टोटल बेड्स कितने हैं हमारे पास? बेड्स तो हमारे पास 520 हैं. 520 सिर्फ इस बिल्डिंग में है या अलग अलग जगह? नहीं, इस बिल्डिंग में 340 बेड्स हैं और सामने की बिल्डिंग में 200 हैं. अच्छा. करीबन 540 बेड्स हो जाते हैं. अच्छा. और मैम ये आगे इमरजेंसी वार्ड्स में कितने पेशेंट्स हैं? वहाँ पे भी हैं अभी? या वी आर हैविंग अ 12 बेड इमरजेंसी. दैट्स अ वेरी स्मॉल इमरजेंसी, बट उसके पास ही हमने एक इमरजेंसी 2 भी खोला हुआ है. उसमें भी हैव 40 बेड्स. पर मैम बट दोज आर ऑल फुल. हाँ, तो इन इमरजेंसीज में भी लोग 3-3, 4-4 दिन हैं, अभी एडमिशन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में? नहीं, ऐसा नहीं है. एडमिशन सबको दे रहे हैं. बट कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि वी आर कीपिंग 2 पेशेंट्स ऑन अ बेड, बट वी आर गिविंग ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पेशेंट. हाँ, पर वहाँ 3-4 दिन भी लोग रहकर जा रहे हैं, उनको अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा. नहीं, अंदर तो मिल रहा है. वहीं पर ट्रीटमेंट हो जा रहा है इमरजेंसी में. हाँ. थोड़ा सा जो वार्ड्स हैं उसमें कम जा पा रहे हैं. जैसे ही वहाँ डिस्चार्ज होते हैं, शिफ्ट दिस पेशेंट्स टू द वार्ड्स. अच्छा. Patients and attendants also allege they have to buy medicines from outside. दवाई लानी पड़ती कोई. दवाई बाहर से लानी पड़ रही है? बाहर से लानी पड़ रही है. हाँ, हम भी लेके आए 40 रुपये, अभी भी लेके आए. क्या? और बोतल यहाँ तो भी बोतल एक बोतल नहीं लगी. मरीज भी सब सीरियस है. पर तो बोतल आपको कहाँ लगी? इमरजेंसी में? टंकी बताइए गेट नंबर 2 से, वहाँ से 140 रुपये तो मिल जाती हैं. जैसे हाँ? हमें पेंटो पे लिखा है टेबलेट, वहाँ मना कर दिया नहीं है. Not only are the toilets of the hospital dirty, but the campus is unclean as well. Open drain and garbage, where untreated medical waste can also be seen shining brightly in the dump at various points dot the hospital. Inside the wards, trash cans are full and used syringes lie around them. ये अलमारी भर रही है खाने से, सड़े हुए खाने से? हाँ. तो हम मच्छर लग रहे तो हमारा बच्चा बोलो मम्मी मच्छर लग रहे हैं. मैंने कही मैंने देगी तो खाना बहुत पड़ो जाए. मैम सामने जो एसएन मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी बड़ी गंदगी है. पिग्स आर लॉइटरिंग अबाउट एंड जगह जगह कचरा भरा हुआ है. सो व्हाट आर वी डूइंग टू क्लीन अप द हॉस्पिटल विच इज़ द एपिसेंटर ऑफ द फाइट अगेंस्ट डेंगू? नगर निगम हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्लॉय किया है. देयर इज़ एन इंस्पेक्टर हु इज़ इन चार्ज फॉर आवर एरिया देयर. हमारे सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में काम चल रहा है. बिकॉज वहाँ पे देयर इज़ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स. दूर दूर से, रूरल एरिया से, सब जगह से लोग आ रहे हैं. नगर निगम ने वहाँ पे एक बायोडाइजेस्टर टॉयलेट और पानी का भी इंतज़ाम किया है. इसके अलावा वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 तालाब हैं हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर. उनको ड्रेन करने के लिए पंप्स लगे हुए हैं, बट वो क्योंकि दे आर तालाब्स, दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली ड्रेन, बट डे और नाइट वहाँ पे पंप्स जो हैं उनसे पानी निकाला जाता है. और बिकॉज प्रॉबेबली एंटी लार्वा इज़ नॉट अ सोल्यूशन दैट यू एक्चुअली सी, कि वो आपको साइड पे दिखेगा, आपको सिर्फ पानी दिखता है. मैं ऑलमोस्ट डेली हॉस्पिटल में जाती हूँ और मैंने अपने सामने भी वहाँ पे सभी तालाबों में एंटी लार्वा और BTI पूरा छिड़काव वहाँ पे हमने कराया है. ठीक है. आपने बताया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नॉट इनसाइड द हॉस्पिटल. नॉट इनसाइड द हॉस्पिटल बट इन हॉस्पिटल ग्राउंड्स. नो, इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. तो ये जो हॉस्पिटल कंपाउंड की जो हमने बात करी, तो वहाँ पे एंटी लार्वा वगैरह का छिड़काव जो हम कर रहे हैं, दैट्स आवर्स. नो, we have just taken it on ourselves. Okay. हाँ, so it is like that. Okay. Because क्योंकि देखिए वहाँ पे अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने वो काम ले लिया है. Not that मतलब हमारा हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर हमारा ऐसा कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. वो हॉस्पिटल का अपना, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका अपना होता है. लेकिन हम क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और मतलब वहाँ पे तो कचरा भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्लियर करा रहे हैं. हमारे 10 लोगों की टीम सुबह शाम वहाँ पे काम कर रही है. क्योंकि कल मैंने वहाँ पे ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम भी देखी. कुछ अटेंडेंट्स और पेशेंट्स भी ग्राउंड्स में आके खुद को रिलीव कर रहे हैं. तो क्या हमारे टॉयलेट्स इनफ हैं इस समय उनकी नीड्स पूरी करने के लिए? देखिए, हमें जो रिक्वेस्ट वहाँ से मिली थी, एक
एक टॉयलेट के वो लगाने के लिए वो हमने उनको दे दिया है। अगर हमारे पास वहाँ से दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो हम और भी प्रोवाइड कर देंगे। For The Print, this is Shubhangi Mishra. For more, log on to theprint.in and follow us on our social media handles.